हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस वो पढ़ेंगे जो पुराने सिलेबस की बुक थी। उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट। मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारी पहला क्वेश्चन है x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equal to 0. This equation number first and this equation number second. So first we have to write a1 equal to 1, b1 equal to minus 3 and c1 equal to minus 3. a2 equal to 3, b2 equal to minus 9 and c2 equal to minus 2. First we will find a1 upon a2, 1 upon 3, b1 upon b2 equal to minus 3 upon minus 9, कट गया 1 upon 3, and c1 upon c2 equal to minus 3 upon minus 2, cancel is 3 upon 2. It means a1 upon b, इसका मतलब so this में a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. ये किसी कंडीशन है so the given pair of linear equation है no solution. हमारा नो सॉल्यूशन आ गया तो हमने इसको फाइंड नहीं करना। सेकंड पार्ट है 2x plus y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 8. This equation first, this equation second. a1 equal to 2, b1 equal to 1, c1 equal to 5 and a2 equal to 3, b2 equal to 2 and c2 equal to 8. So a1 upon a2 equal to 2 by 3 and b1 upon b2 equal to 1 by 2. So therefore a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So the given pair of linear equation है exactly one solution. It means यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको फाइंड करेंगे। तो इसका फाइंड करने का मतलब क्या, हमारा y पहली क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेट हो जाएगा मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 by 2 and equation number 1 by 1. It means 4x plus 2y equal to 10 and 3x plus 2y equal to 8. This is equation number 3 and this is 4. Okay, subtract the equation number 4 from 3. तो 3 ऊपर लिखेंगे हम 4x plus 2y equal to 10 and 3x
प्लस 2y इक्वल टू 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे इसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल। 4x माइनस 3x इज x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 आ गया। now फिर putting the value of x in equation number 1 हो गया 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, so 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, so y इक्वल टू 5 माइनस 4, so y इक्वल टू 1। आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। नाउ थर्ड है 3x minus 5y equal to 20 and 6x minus 10y equal to 40. This is 1 and this is 2. So a1 equal to 3, b1 equal to minus 5 and c1 equal to 20. a2 equal to 6, b2 equal to minus 10 and c2 equal to 40. So a1 upon a2 equal to 3 upon 6, 1 by 2, and b1 upon b2 equal to minus 5 upon minus 10, minus 10 आ गया 1 जा 2 जा 1 upon 2, and c1 upon c2 equal to 20 upon 40. So therefore a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. So the given pair of linear equation has infinite many solutions. थर्ड वन पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। फोर्थ वन चलो कर देते हैं, x minus 3y minus 7 equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 equal to 0. This is question first, this is second. So a1 upon a2 कितना हो गया 1 upon 3 and b1 upon b2 कितना हो गया minus 3 upon minus 3 1. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So the given pair of linear equation has unique solution. इसको हम जैसे मैं फाइंड किया था सेकंड पार्ट वैसे इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड भी हमारे पास क्वेश्चन है। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कंडीशन दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x plus 3y equal to 7. This is question number first. And a minus b x plus a plus b y equal to 3a plus b minus 2. This is question number second. So first right now a1 equal to 2, b1 equal to 3 and c1 equal to 7. a2 equal to a minus b, b2 equal to a plus b and c2 equal to 3a plus b minus 2. Condition for infinite many solution। क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की? तीनों इक्वल होते हैं। a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। इनमें 2 upon a minus b equal to 3 upon a plus b equal to 7 upon
3a प्लस बी माइनस 2। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू ए माइनस बी। 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये इधर भी चले जाते हैं, हो जाएगा 2a माइनस 3b 3a इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b। माइनस a इक्वल टू माइनस 5b, ये कट गया। सो a इक्वल टू 5b। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में लेते हैं। पहले हमने ये दो पार्ट लिए थे, अब ये दो पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 3/a प्लस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7a प्लस बी। ये क्या थी 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। चलो जी, एक इधर ले जाते हैं, बाकी सब शिफ्ट कर देते हैं। 9a माइनस 7a इक्वल टू 7b माइनस 3b प्लस 6। 2a इक्वल टू 4b प्लस 6, ये तो आ जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। सो ये कितना है 5b। 2 इंटू 5b माइनस 4b इक्वल टू 6। 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। 6b इक्वल टू 6। b इक्वल टू 6/6। b इक्वल टू 1। Putting the value of b in 1। तो यहाँ आ जाएगा a इक्वल टू 5 इंटू 1, a इक्वल टू 5। सो आंसर क्या हो गया, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1। दिस इज आंसर। सेकेंड कंडीशन है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो फर्स्ट राइट ऑफ इक्वेशन नंबर सिंपल दी हुई है। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। सो a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 1। a2 इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू k माइनस 1 एंड c2 इक्वल टू 2k प्लस 1। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो राइट 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। तो पहले इसको ले लेते हैं दो को। 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1। 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। k इधर आ जाएगा 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3k इक्वल टू 2। दिस आंसर ना। हम इसमें से सॉल्व कर देते हैं लास्ट टू को लेके। 1/k माइनस 1 इक्वल टू 1/2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 2k प्लस 1 इक्वल टू
k minus 1. So 2k minus k equal to minus 1. So k equal to minus 2. K is not equal to minus 2. तो आंसर आ गया हमारा k equal to 2. This is answer. अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन. A part of monthly hostel charges is fixed, and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. मतलब कि होटल चार्जेस तो फिक्स हैं, मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स हैं, और उसके बाद जितने दिन और फूड मतलब खाना खाएगा उसके चार्जेस अलग है. लेट फिक्स charges of monthly hostel equal to rupees X, and charges for number of days one has taken food in the mess equal to rupees Y. ये हमारे पास रुपीस है, ये भी रुपीस है. Charges for 20 days. And charges for takes food for 20 charges. ये इधर आ जाएगा. Charges of takes foods for 20 days equal to rupees 1000. So equal to question is now x plus 20y equal to 1000. क्योंकि ये तो फिक्स चार्ज है मंथली, और 20 दिन उसने खाना है तो एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y हो गया. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. और सेकंड क्या है, चार्जेस फॉर 26 days equal to rupees 1180. So इक्वेशन देगा x plus 26y equal to 1180. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब इसमें x सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ x सेम है तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. तो 2 को हम पहले लिख देंगे. साइन चेंज जाएंगे इसके. ओके, ये हो गया हमारे पास 6y इक्वल टू 180. सो
y equal to 180 by 6, 30. It means y की वैल्यू आ गई हमारे पास 30, y आ गया 30. Putting the value of y in 1. So x plus 20y equal to 1000. So x plus 20 into 30 equal to 1000. X plus 600 equal to 1000. X equal to minus 600. X equal to 400. अब ये हमारी दो लाइनें फिक्स हुई हैं. Hence fixed charge is equal to rupees x equal to rupees 400 and cost of food per day equal to rupees y equal to rupees 30. This is आंसर ना. यहाँ ये नहीं सकते थे कॉस्ट ऑफ फूड, इसकी जगह हम ये भी सकते थे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू रुपीज़ 5. फोर्थ है हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फाइंड करना है. अब उसमें 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर से एक माइनस कर दें 1 तो हमारा फ्रैक्शन जो 1/3 बन जाता है. और सेकंड है अगर हम 8 ऐड कर दें न्यूमरेटर में तो 1/4 बन जाता है. तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड y. फ्रैक्शन कितना हो गया x अपॉन y. According to question, 1 is subtracted from numerator. It means x minus 1 upon y equal to 1/3. Solve कर दो इसको. 3x minus 1 equal to y. 3x minus 3 equal to y. 3x minus y equal to 3. This is question number first. Second है हमारे पास 8 is added to the denominator. It means x upon y plus 8 equal to 1/4. Cross multiply 4x equal to y plus 8. 4x minus y equal to 8. This is question number second. अब y के कोएफिशिएंट सेम है और माइनस है तो क्या करें सब्ट्रैक्ट. Subtract the equation number 1 from 2. तो 2 को हम पहले लिखेंगे 4x minus 5 equal to 8 and 3x minus y equal to 3. साइन चेंज हो जाएंगे इसके, कैंसिल. 4x minus 3 is x equal to 5. x 5 आ गया. फिर वही putting the value of x in 1. 3 into 5 minus y equal to 3. 15 minus y equal to 3. Minus y equal to 3 minus 15. Minus y equal to minus 12. Y equal to 12. Putting the value of x and y in given fraction. So
given is equal to x upon y equal to 5 upon 12. इसमें से पहले x माइनस 1 करते हैं 4 upon 12 is 1/3. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यस स्कोर 40 marks in a test getting 3 marks for each right answer and 1 losing 1 marks for each wrong answer. मतलब 40 मार्क्स मिल रहे हैं उसको 3 मार्क राइट आंसर में और 1 दिस. इसमें सपोज कर देते हैं लेट नंबर ऑफ right answer equal to x and number of wrong answer y. Now first part है marks for 1 right answer equal to 3 and marks for 1 wrong answer equal to 1. Marks for x right answer equal to 3x marks for y wrong answer equal to -y. मार्क्स स्कोर कितने हैं 40. सो क्वेश्चन क्या हो गया 3x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 40 3x minus y equal to 40. This is question number first. So again second part is इसका marks for right answer कितने हैं 4 and marks for wrong answer equal to 2. मार्क्स स्कोर कितना है 50. मार्क्स फॉर x right answer is 4x. Marks for y wrong answer कितना हो गया -2y. सो इक्वल टू क्वेश्चन कितना हो गया 4x प्लस -2y इक्वल टू 50. इसमें 4x -2y इक्वल टू 50. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल हो जाएगा तो क्या रखेंगे मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 by 2 and इक्वेशन नंबर 2 by 1 कितना हो गया 6x minus 2y इक्वल टू 80. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और ये तुम्हारा पास 4. सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4
फ्रॉम 3, तो 3 पर लिखेंगे 6x माइनस 2y इक्वल टू 80 एंड 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/2, इट मीन्स 15, x आ गया 15. Putting the value of x in equation number 1, क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, so y equal to 5. Hence number of right question equal to x. अच्छा, total number of questions equal to x plus y, it means 15 plus 5, it means 20. This is answer. Six A, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. If the car travel the same direction at different speed, they meet after 5 hours. If they travel towards each other, they meet after 1 hour. What are the speed of the car now? इसके हम पीछे फिगर बना देते हैं. ये ए प्लेस है, बी प्लेस है, इनका डिस्टेंस है हमारे पास 100 किलोमीटर. अभी कार यहाँ से ए से स्टार्ट हो रही है, ये पहुँच गया यहाँ पे. एक बी से स्टार्ट हो रही है, ये पहुँच गया यहाँ पे ए प्लेस सी. तो इसकी स्पीड है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. और टाइम हुआ हमारे 5 घंटे और 5 घंटे. Distance between two places A and B equal to AB equal to 100 km. Let speed of car start from place A equal to x kilometer per hour and the speed of car start from place B equal to y किलोमीटर पर आवर. अब फर्स्ट पार्ट है इसका, if both car travel in the same
direction. They meet after 5 hours at place C. Right? Distance traveled by car A in 5 hours equal to AC equal to 5x किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इन 5 hours equal to BC equal to 5y kilometer. According to figure, AB plus BC equal to AC. AB कितना था हमारे पास? 100 प्लस BC कितना था? 5y equal to 5x. It means 100 equal to 5x minus 5y. 100 equal to 5 को माना गया, x minus y. So x minus y equal to 100 upon 5. It means 20 equal to x minus y. It means x minus y equal to 20. This is equation number first. Now next figure बनाते हैं. ये है, बी है, इनका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. ये है टी. सेम भी है, किलोमीटर पर आवर है. 1 घंटा वाई किलोमीटर पर आवर. If both cars travel towards each other, travel towards each other, they meet after 1 hour at place D. तो सिंपली है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A in 1 hour equal to AD equal to x किलोमीटर, क्योंकि x इंटू 1 होगा स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B in 1 hour equal to BD equal to y किलोमीटर. So according to figure, AD plus BD equal to AB. So x plus y equal to 100. This is second. फर्स्ट ये था, सेकंड है. तो y हमारा सेम है, अपोजिशन है. एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2. It means x minus y equal to 20, x plus y equal to 100. Cancel. 2x equal to 120, x equal to 120 by 2, x equal to 60. Put x equal to 60 in 2.
तो कितना जाएगा 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, so y इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू 40. Hence speed of car A equal to x kilometer per hour. It means 60 kilometer per hour, and speed of car B equal to y kilometer per hour. It means 40 kilometer per hour. This is question. अगर हमारे पास the area of a rectangle gets reduced by 9 square unit if its length reduced by 5 unit and width is increased by this. Let length of rectangle equal to x unit and width of rectangle to y unit. Area equal to xy square unit. If length is reduced by 5 units, so length of rectangle to x minus 5 unit, and width is increased by 3 unit, so width equal to y plus 3 unit. So according to question is x minus 5 y plus 3 इक्वल टू 9. इसकी रिड्यूस हो गया, रिड्यूस मीन्स कम हो गया. इट मीन्स क्या था हमारे पास एक्स वाई माइनस 9. तो इस कैसे पड़ गया, सॉल्व कर देंगे इसको. एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. हो गया 3x माइनस 5y इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9 माइनस एक्स वाई प्लस 15 कैंसिल हो गया. So 3x minus 5y equal to 15 minus 9 is 6. This is number first. Second case is if length is increased by 3 units, so length कितना हो गया x plus 3 and width is increased by 2 units, so width कितना हो गया y plus 2 unit. So according to question is what, area हो गया x plus 3 into y plus 2 इक्वल टू इंक्रीज हो गया 67 स्क्वायर यूनिट. मीन एक्स वाई प्लस 67. चलो जी सॉल्व कर देते हैं. एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67. मीन 2x प्लस 3y इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67 माइनस एक्स वाई माइनस 6. 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, 61. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड.
सॉल्व करना हमने, y को इक्वेट कर देते हैं हम इसको, चलो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 by 2 and इक्वेशन नंबर by 3। तो इसके 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, 3 से हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज 4। इक्वेशन नंबर 2 by 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 4 से 4 पर आ जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 183 एंड 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया 19y इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1, 3 8 माइनस 7 1, y इक्वल टू 171 अपॉन 19, ये कट गया 9 जा, y इक्वल टू आ गया 9। पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। So 3x minus 5 into 9 equal to 6. So 3x minus 45 equal to 6. 3x equal to 6 plus 45 sorry. So 3x equal to 51. So x equal to 15.3. 3 पंजा 3 7 जा. So x equal to 17. So length of rectangle equal to x unit equal to 7 unit and width of rectangle equal to y unit equal to 9 unit। कुछ हो गया। नेक्स्ट है Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Speed of the rowing in still water and thin. So let the speed of rowing in still water equal to x km/h and speed of the current means water equal to y km/h। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि जब नीचे जाएगा तो दोनों की स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई km/h एंड अपस्ट्रीम स्पीड कितनी जाएगी x माइनस वाई, क्योंकि रोइंग की स्पीड से हम इस करंट की स्पीड माइनस करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। हो गया। नो अब फर्स्ट पार्ट क्या है, डाउन स्ट्रीम क्यों देना,
डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। टाइम कितना होगा 2 आवर। सो स्पीड कितना लेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट मीन्स 20/2 10 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम देता हूँ, इट मीन्स x plus y equal to 10. This is equation first. Second is upstream distance हो गया 4 किलोमीटर एंड टाइम हो गया 2 आवर। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 4/2 2 किलोमीटर पर आवर। सो दिस अप्लाइज x minus y equal to 2. This is equation second. Adding 1 and 2. So x plus y equal to 10 and x minus y equal to 2. Cancel. 2x equal to 12. X equal to 12/2. X equal to 6. Putting the value of x in equation number 1. X plus y equal to 10. 6 plus y equal to 10. Y equal to 10 minus 6. Y equal to 4. आ गया हमारे पास। अब ये दो सेंटेंस दोबारा रिपीट हो जाएंगे हमारे पास। Hence speed of rowing in still water equal to x kilometer per hour equal to 6 kilometer per hour, and speed of current equal to y kilometer per hour equal to 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे खत्म होते हैं। अब ऐसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई इसमें कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको समझ आते हैं, ईजी लगते हैं और सही लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ आए या नहीं आए। ओके, थैंक यू।